Mr. Sanjeev Gupta ji is a mechanical engineering graduate from REC Calicut, now known as NIT Calicut in 1986. He completed his GMP from IIM Indore in 2010. As the successful owner of Veltronics India Private Limited and information technology business, Mr. Gupta has earned numerous accolades from various information technology magazines, all due to his hard work and dedication. From 2004 to 2019, his company consistently is receiving nominations from CRN Channel Awards for Best Ethical Practices in IT Industry. In 2005, Veltronics India Private Limited received the Gold Award for the Best Ethical Practice in the West, followed by the National Silver Award in 2006. Mr. Gupta has also been honored with awards from other IT magazines such as DQ Channel, Channel World and Softdisk. Additionally, he is involved in a family business which includes retailing petroleum products and garments. In addition to his professional accomplishments, he has served as past president of MP Telecom and Computer Traders Association, a prestigious organization that organizes the renowned annual IT trade fair called as Konocom in central India. Mr. Gupta joined Rotary in 1991 and served as president of Rotary Club of Indore, Uptown in 1997-98. He has taken leadership roles within Rotary such as serving the GSC team leader to France RID 1680. Furthermore, he held the position of district governor RI 3040 during 15-16. He has also visited Canada and USA under RFE program and attended RI conventions in Bangkok and Toronto. Presently, he is in the district learning facilitator for 23, 24 and 24-25. Mr. Gupta played a crucial role in successfully completing a global grant worth $77,500 US. This grant with financial assistance from PRID Kalyan Banerjee and past trustee Rotarian Kita of Japan supported the establishment of 6 schools and transformed them into happy schools. Under Mr. Gupta's leadership during 2015-16, several notable achievements were accomplished. He facilitated the provision of artificial limbs to 1,500 individuals through collaborative efforts with LN4 Foundation, Team Uptown and Rotarians of RI District 3040 and 3052. Successful implementation of projects worth $4 lakh US, including the school furniture project, dialysis project which is running in Indore, Ratlam and Itarsi, and health camps at 25 different locations with support from the Rafa Action Group and clubs of RI District 3040. Submission of projects worth $1 lakh US focusing on e-learning and vocational training centers. He has contributed $1.17 lakh US to the foundation through RI District 3040 with the support of 600 plus Rotarians and 58 plus clubs. RI D3040 has received different awards in the following categories: recognition for public image in Rotary and commendable work for Happy School. 97% of the clubs successfully setting their goals online, ranking third in India. 23 clubs receiving presidential citations, ranking 7th in India, 38 worldwide. His wife, his better half, Archana Gupta, and son Himanshu Gupta are involved in the garments business. His daughter Ankita served as past DRR and is currently working in an IT company in USA. Her husband Anuj is also working in USA. Mrs. Balwinder and District Governor Dr. P.S. Grover, all the respected RI officers and Rotarians of District 3070, now I invite Sanjeev Gupta ji to address the audience. And I would like to extend my best wishes to the DGE, Rohit Oberoi, and his gracious half, Arnab Oberoi, for the coming year. Thank you so much. के अभिभूत हूँ और मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, पर मुझे जो असाइनमेंट मिला है मैं कोशिश करूँगा उसको जस्टिफाई करूँ। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा वुमेन्स डे सेलिब्रेशन की, और इस पर मुझे एक ग्रोवर साहब से जब बात चल रही थी तो वुमेन पावर कितना है तो उससे समझ में आता है कि जब ग्रोवर साहब ने एक रोटेरियन को फोन किया कि मैं आपके आ रहा हूँ चाय पीने,
तो वो रोटेरियन समझ गए कि आ रहे हैं मतलब फाउंडेशन के लिए कुछ मांगेंगे। वो गए और उन्होंने पहले ही तैयारी से $500 का चेक लिख के रखा था, लेकिन भाभी जी अंदर से आई और उन्होंने कुछ आंखों से ही इशारा किया और वो रोटेरियन ये समझ गए कि मुझे 500 नहीं $1000 का कंट्रीब्यूशन करना है, और उन्होंने फटाक से चेक चेंज किया और $1000 का कंट्रीब्यूशन ग्रोवर साहब को दिया। सो ये पावर होती है वुमेन्स की कि वो आंखों के इशारों में उन्हें कब पॉजिटिव देना है और कब हस्बैंड को रोकना है। उसके लिए भी यदि उसने कहीं खास भी दिया तो आप समझ जाइए कि अब आपको ये काम करना है या नहीं करना है। अमृत को जो हम यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है कि शायद इसके ऊपर एक सोच होगी डॉक्टर साहब की कि जब कुछ लोग प्रयागराज न जा पाए तो यहाँ पर जो लोग प्रयागराज जाके यहाँ पे आए हैं, हम उनसे शेक हैंड करेंगे, हाथ मिलाएंगे, उनसे हम जब गले मिलेंगे तो जो उन्होंने पुण्य कमाया है उसका कुछ हिस्सा हम सबको जरूर मिलेगा। तो इस तरह से हम सभी लोग उस पुण्य के भागीदारी होने वाले हैं। इस वर्ष का थीम मैजिक ऑफ रोटरी है। मुझे स्टेफनी जो हमारी वर्ल्ड प्रेसिडेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हम इसको रोटरी का जादू कहें या इत्तेफाक कहें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी डेट ऑफ बर्थ हम शेयर करते हैं 27 दिसंबर। स्टेफनी पेंसिल्वेनिया में मैकमोरी क्लब की मेंबर है। चूंकि मेरी डॉटर वहां पे जॉब करती है, तो 2018 में जब मैं पिट्सबर्ग गया था तो ये मेरा एक कॉन्फिडेंट और इत्तेफाक था कि मैं उस क्लब में विजिट करके आया था एज ए गेस्ट। तो रोटरी में कब इत्तेफाक हो जाए और कब रोटरी का जादू हो जाए ये हमें नहीं पता। और मुझे मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा राजू जी का, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि उन्होंने मुझे स्टेफनी जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं उनसे मुझे कनेक्ट करा। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया, गुरजीत सिंह से मेरी बातचीत चलती ही रहा करती थी और मैं उनको ही जानता था, दुष्यंत जी को जानता था। तो मैंने कहा मैं आपको काफी तंग करता रहूँगा आने के पहले, पर हुआ यूं कि जो ऐड है हमारे दुष्यंत जी, मैं सोचता था कि मैं उनको फोन करके कुछ पूछूं कि इनका फोन आ जाता था। तो मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे गवर्नर साहब को भी तंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस तरीके से दुष्यंत जी ने मुझे ख्याल रखा और बातें बताई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं कुछ इस तरह से बात करना चाहता हूं कि आप देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट 3040 से आया हूं और 3070 है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट 3070 है, 40 है, और वो आपका डिस्ट्रिक्ट 3070 है। हमारी एक ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने एनालाइज करी है कि हम 100 क्लब में 2357 मेंबर हैं और आप 115 क्लब में 3150 मेंबर हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम 24-25 पर क्लब मेंबर हैं। सिर्फ हम इसी बात को एड्रेस कर लें हम दोनों, और हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिस यदि शेयर करते हैं और क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और हर क्लब में यदि 5-5 मेंबर भी बढ़ा लिए तो हमारी मेंबरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी और क्लब भी फंक्शनिंग अच्छे करेंगे। क्योंकि जब तक क्लब में मेंबर नहीं होते हैं उनको फंक्शनिंग करने में प्रॉब्लम होती है। मैं बात कर रहा था, जब मैं देख रहा था आपके डिस्ट्रिक्ट में होलिस्टिक प्लेस में वैष्णो देवी और दरबार साहब गोल्डन टेम्पल, हमारे डिस्ट्रिक्ट में महाकाल है और ओंकारेश्वर है। आपके यहाँ अटारी बॉर्डर या बाघा बॉर्डर है, हमारे यहाँ महू है,
जो एक एशिया का बिगेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है आर्म फोर्स का। और ऐसा कहा जाता है कि यदि व्यक्ति डिफेंस ज्वाइन करता है तो उसका मक्का मदीना है, वो अपने लाइफ टाइम में एक बार वहाँ जरूर जाता है। और उसका जीता जागता उदाहरण शिवानी जी है। जब मेरी बात हो रही थी तो शिवानी जी भी महू में अपने स्कूलिंग के टाइम पे वहाँ पर थी। ऐसे कई, क्योंकि पंजाब में नोन है कि पंजाब के हर फैमिली मेंबर डिफेंस में होता है। तो हमारी ये जो सिमिलरिटी है इसको हम एक एडवांटेज में कर सकते हैं। जैसे दुष्यंत जी के टाइम पे एक इनबाउंड आरएफई टीम हमारे डिस्ट्रिक्ट में आई थी और उन्होंने ये सब विजिट किए थे, और फिर हम लोग भी गत वर्ष यहाँ पर आए थे और सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। तो इस तरह से कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम और ये करके हम एक दूसरे के डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी बात शुरू जरूर कर चुका हूं, लेकिन बिना प्रणाम करे जो हमारे स्टारवर्ड्स हैं, जो 5 अच्छे गवर्नर हैं, जिनकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट एक नई ऊंचाइयों पे जाता है, यदि मैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगा 5 अच्छे गवर्नर एस वी हंस साहब को, 5 अच्छे गवर्नर सुरेंद्र सेठ साहब को। और सुरेंद्र सेठ साहब को तो विशेष रूप से इसलिए कि यदि आज मैं रोटरी में यहाँ तक आया हूँ तो शायद पहले पड़ाव पे जो धक्का दिया था वो उन्होंने ही दिया था। और वो कैसे दिया था, एक वाकया है। मैं प्रेसिडेंट बना था 97-98 में, और मुझे हमारे गवर्नर विजय नारायण मित्तल जी ने आदेश दिया था कि आपको पैक्स में आना ही है। उस समय रोड्स कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। हम इंदौर से भोपाल जब पहुंचे तो हम टायर्ड हो गए और मैंने कहा भाई रोटरी इतनी नहीं हो पाएगी कि बार बार हमें जाना पड़े। लेकिन सुरेंद्र सेठ साहब वहां पे जब आए और जब ये पता चला, उस समय हवाई जहाज फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी, और ये मालवा एक्सप्रेस से जो 14 घंटे की यात्रा होती थी, और उस जमाने की रेलवे की कृपा से वो शायद 24 घंटे की हो चुकी थी। ये 24 घंटे ट्रैवल करके आए सिर्फ 20 मिनट बोलने के लिए। और जब उन्होंने 20 मिनट जो बोला, और उसके बाद मैं इनका फैन हो गया और मैंने कहा नहीं, जब ये कर सकते हैं तो रोटरी मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ मैं शायद उनकी प्रेरणा से यहाँ पे हूँ। पास गवर्नर अरोरा जी, पास गवर्नर खुल्लर जी जो काफी सीनियर हैं, गुरचरण सिंह जी, पास गवर्नर टंडन साहब, सुरेंद्र विज जी। मैंने साइड में पिक्चर भी लगाई है जिससे आप देख सके कि आपके बैचमेट उस समय का हो, क्योंकि नए जो बने हैं रिसेंटली उन्हें तो याद रहता है, कभी किसी कारण से आप भूल गए हो तो आप अपने बैचमेट्स को एक चेहरा ध्यान करके और याद कर सकते हैं। महेंद्र जी एंड नरेंद्र के सूद जी, अरुण कपूर जी, मेरी मुलाकात आपसे हुई, सुरेश चौधरी जी, अरुण कुमार जैन साहब, मोहन सिंह सचदेवा जी, GS बाबा जी। मैं विशेष रूप से इनका उल्लेख करना चाहूंगा। मैं यहां से इनसे सीख के जा रहा हूं। जिस तरीके से 3 और 4 में गवर्नर थे, आज भी एक्टिव है। मैंने देखा सब रोटेरियन उनका एक रेस्पेक्ट करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये रेस्पेक्ट बिना कुछ दिए नहीं आता है। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मेहनत करी होगी और जो सपोर्ट करते हैं हर इनकमिंग लीडर्स को, वो उनका आदर सम्मान उसी तरह से करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में जब हम किसी को रेस्पेक्ट देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तभी यदि हम इगोइस्टिक रहेंगे तो शायद न कर पाएंगे। और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उनके कुछ गुण तो जरूर मुझ में आए। डॉक्टर बीना जी, डॉक्टर SP सेठी जी जो 5-6 में गवर्नर थे, डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह ग्रोवर साहब, डॉक्टर विनोद शर्मा जी एंड मनमोहन जी, संजीव सेठी जी, उपकार सिंह सेठी जी यहाँ नहीं है पर मेरे ख्याल से हम उस समय आए हैं। सेठी जी, आपसे मुलाकात मेरी पहले भी रोटरी के प्लेटफॉर्म पे हुई है, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। पवन गुप्ता जी, गुरजीत सिंह सिखों को मैं भूल नहीं सकता, इनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा है और उम्मीद है कि मैं आगे भी इनसे सीखता रहूँगा। जो अभी
इंस्टीट्यूट रोटरी इंटरनेशनल असेंबली हुई थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट रोटरी इंटरनेशनल ट्रेनर भी थे और एक अच्छे वक्ता हैं और इनसे हमेशा बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे स्वर्गीय धीर साहब को भी नाम लेना चाहूँगा, उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे बेचमेंट थे, अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत एक्टिव रोटेरियन और नॉलेजेबल पर्सन थे। सर्वजीत सिंह जी, रविंदरजीत सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, सुनील नागपाल जी से मेरी मुलाकात हुई है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीडी जिनको कहते हैं उनके बैचमेंट में बहुत एक्टिव। दविंदर सिंह जी, उपिंदर सिंह भाई जी एंड डॉक्टर दुष्यंत। डॉक्टर दुष्यंत एक ऐसी शख्सियत है, इनसे कई बार मुझे मिलने का मौका मिला। ये हमारे यहाँ एक बार असेंबली में आए और उसके बाद जब ये टीम को लेके आए थे, आरएफई टीम को, तो उसका जो वेलकम सेरेमनी थी उस भी समय आए। और अभी तो वंडरफुल सपोर्ट, मैं शिवानी भाभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि वो लिख के मैं नहीं दिया था, पर मेरी गलती हो गई, इतना सब लिख के नहीं देना चाहिए, थोड़ा उसको मुझे ही छोटा कर लेना चाहिए था। ग्रोवर साहब के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ही इज सो नाइस पर्सन और उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि मैं किसी अननोन डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे, क्योंकि इनसे मेरी इत्तेफाक से एक वर्ष पूर्व इनसे और नजीम साहब से और भी रोटेरियन से मुलाकात हो गई थी, क्योंकि जब हम लोग गोल्डन टेम्पल दर्शन के लिए आए थे तब आपने हमें बहुत सहयोग दिया था और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और सारी चीजें अपने ऊपर लेते हैं और चेहरे के ऊपर शिकन नजर नहीं आ रही है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यदि डिस्ट्रिक्ट में हो तो कुछ मतलब उस डिस्ट्रिक्ट को ऊंचा जाना ही है। और ये जो आने वाले लीडर्स को, रोहित जी को और अनिल जी को साथ लेके चल रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, ये तारीफ काबिल है। क्योंकि जब 3 लोग और अब चौथे भी आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद कल, जब एक साथ डिस्ट्रिक्ट में एक सोच के साथ कार्य करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हर वर्ष एक नई प्रगति पे जाएगा ही जाएगा। मैं यहाँ पर विवेक तमखा जी को भी नमन करना चाहूँगा। आप हमारे स्टेट से ही हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग है, जबलपुर से हैं, लेकिन जब भी हमने राहत कैंप किए हैं, एमपी नोन फॉर ए राहत कैंप, मेगा राहत कैंप, मैं ऑफलाइन बताऊंगा जो भी जानना चाहेंगे किस तरह से करते हैं, पर यदि विवेक तनखा जी का यदि सपोर्ट नहीं होता तो शायद वो राहत जिस लेवल पे हम करते हैं वो हम कर नहीं पाते। अब हम कुछ रोटरी की बात कर लें, क्योंकि मुझे वर्ल्ड प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करना है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ी बातें करूंगा क्योंकि मुझे आती भी नहीं है ज्यादा। जो रोटरी में हम अभी 2 ही मुद्दों पे बात करते हैं या 3 मुद्दे, मेंबरशिप, फाउंडेशन एंड कम्युनिटी सर्विस। मेंबरशिप की हमने बात कर ली कि हमें क्या करना चाहिए, मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो फाउंडेशन पे भी हमारी बात अपने आप हो जाएगी। और फाउंडेशन में यदि हमने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत यदि यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स को पकड़ लिए तो कोई टारगेट, कोई छूट कितना भी बड़ा हो वो नहीं पड़ेगा। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट भी बहुत कम कर पाता था, लेकिन जब से CSR करने लग गए हैं, सिर्फ एक ही थंब रूल में यहाँ बताना चाहूँगा, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका 5 करोड़ का प्रॉफिट है उसको कंपल्सरी 2% CSR में खर्च करना है। और यदि वो नहीं करेंगे तो उनको गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री फंड में जमा करना है। तो आप यदि ऐसे कॉर्पोरेट्स को जानते हैं जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको टैप कीजिए और उन्हें 31 मार्च के पहले करना है। और CSR ग्रांट किसी भी एरिया की कैसी भी हो, रोटरी फाउंडेशन उसको 24 आवर्स में अप्रूव करता है। बस उसमें एक ही बॉटल लिख है कि मिनिमम टिकट साइज $21,000 का होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये CSR प्रोजेक्ट करना आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए
कोई असंभव है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, आप उनको टैप कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे दिल के करीब एक प्रोजेक्ट इंडोरमेंट फंड, और जब मैं पता कर रहा था तो दुष्यंत जी ने 2 इंडोरमेंट फंड बनाए हैं। यदि आप इंडोरमेंट फंड बनाते हैं जो $25,000 कंट्रीब्यूट करना है, मिनिमम $1,000 कंट्रीब्यूशन करना है, और वो 25 लोग ना हो चलेगा, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन $1,000 का करना होता है। और जब आप वो इंडोरमेंट फंड बना लेते हैं तो उस फंड से जो अर्निंग होती है वो अर्निंग आपको तीसरे साल से आना शुरू हो जाती है, और वो कंटिन्यूअसली आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपकी लाइफ और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल से ज़्यादा तो रेयर केस में होती है, लेकिन वो फंड रोटरी का आपके नाम पर जीवन भर वो लगा रहेगा। जैसे दुष्यंत जी ने एक फंड बनाया है, फ्रेंड्स ऑफ दुष्यंत, तो उससे लगता है कि दुष्यंत जी ने अपने फ्रेंड्स को सबको इकट्ठा किया होगा, पैसे लिए होंगे और एक फंड बनाया है। उसी तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट ने एक फंड बनाया है, जोश बी अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। नाउ सिंपल रीजन, मैं इस साल डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हूँ, और जो प्रेसिडेंट है वो 15-16 की थीम थी बी अ गिफ्ट टू वर्ल्ड, तब वो प्रेसिडेंट था और मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। तो एक कंबाइंड नाम सोच के और कोशिश करी कि जो उस समय और इस समय जो लोग कॉमन लोग हैं उनसे एक इंडोरमेंट फंड को क्रिएट करके बनाया है। ऐसे ही कई रीजन आप ढूंढ सकते हैं और उस नाम से इंडोरमेंट फंड क्रिएट कर सकते हैं। मैं कुछ बात करना चाहूंगा, दुष्यंत जी टाइम ओवर हो जाए तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। पूरा दिन आपके पास? नहीं, पूरा दिन नहीं है, मुझे पूरा दीपक बोरा जी को भी सुनना है। और रोटरी जो है काफी चेंज हुए हैं, और रोटरी में ही क्यों चेंज हुए? हम यदि हमारी हिस्ट्री भी देखें, यदि हम 25 साल पुरानी बातें करें तो कई चीजें चेंज हो गई हैं, और जिन्होंने चेंज नहीं करी है तो फिर उनकी हालत कैसी हो गई है? जैसे कोडेक कंपनी आज कोई नहीं जानता है, या हम नोकिया की बात करें, मोबाइल में पायनियर थे बट आज कोई नहीं जानता है। ऐसे कई चीजें दुनिया में होने वाली हैं। आज के मोस्ट डिमांडिंग जॉब हो सकता है अगले 5 साल में वो दिखे ही नहीं, या हम पुराने कुछ जॉब्स देखें। जैसे आज के जॉब की बात करें, आज हमारे बड़े ऑफिस में सब में ड्राफ्टिंग के लिए एक बंदा होता है जो अच्छा लेटर ड्राफ्ट करता है, या एक एडवोकेट होता है वो ड्राफ्ट करता है। शायद आज भी, या जब आप टेक्नोलॉजी को जो एआई है, तो आपको ड्राफ्टिंग के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ड्राफ्ट कीजिए। इन फ्यूचर यू डोंट नीड ए ड्राइवर। हम यदि पुराने जमाने में जाए तो एक पोस्टर बनाते थे, आर्टिस्ट हुआ करते थे, आज तक कंप्यूटर काम कर देते थे। फ्लैक्स प्रिंटिंग का यहाँ पे मुझे एक भी फ्लैक्स नहीं दिख रहा है, एक्टिव एलईडी आ गई है। सो हमें समय के साथ चेंज करना होगा, और यदि हम समय के साथ चेंज नहीं करेंगे तो कहीं हमारा भी हाल वही हो जाएगा जो और कंपनी लाइक कोडेक या और किसी कंपनी का हुआ है। तो वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, हमें उसको कॉप अप करने के लिए चेंज करना है। हम 12-13 में हमने फ्यूचर विजन प्रोजेक्ट लेके आए, उससे पहले मैचिंग ग्रांट हुआ करती थी, और अब हम ग्लोबल ग्रांट की ही बात करते हैं। देयर इज नो मैचिंग ग्रांट, क्योंकि रोटरी ने समझा कि भाई छोटे प्रोजेक्ट करने के बजाय इंपैक्टफुल बड़े प्रोजेक्ट ही करें। फिर 16-17 में रोटरी ने प्रोफेशनल्स की अप्रोच करी, उनसे सर्वे करवाया और उनसे बात करी, और उन्होंने कई चीजें चेंज करी। जैसे एक विजन स्टेटमेंट, हम यदि यहाँ पे हर रोटेरियन से पूछे कि रोटरी का विजन क्या है, शायद हर व्यक्ति अलग अलग आंसर देगा, लेकिन अब हमें सिर्फ एक ही आंसर देना है। रोटरी का विजन स्टेटमेंट है, टुगेदर वी सी अ वर्ल्ड वेयर पीपल यूनाइट एंड टेक एक्शन टू क्रिएट लास्टिंग चेंज। हम सब यूनाइटेड हैं, एक हैं, और हमें वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए चेंज करना है, पूरे वर्ल्ड को, कम्युनिटीज को, एंड हमें खुद भी। तो एक सिंपल विजन स्टेटमेंट में है ये। जब भी हम किसी को रोटरी को
ऑफर करते हैं कि रोटरी, तो रोटरी का विजन क्या है वो हमें सिर्फ इन शब्दों में बयां करना है। 18-19 में हमने डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूशन इंट्रोड्यूस किया। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हर जेंडर, हर रिलीजियस को और हर तरह के इकोनॉमिक लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और रोटरी के लिए एक अच्छे कार्य करने की प्रयास करना। रोटरी ने 18-19 में भी नए क्लब का एक फॉर्मूला लेके आए, जिसमें सैटेलाइट क्लब एक इस तरह का क्लब होता है कि यदि आज की तारीख में ट्रैफिक की प्रॉब्लम और डिस्टेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो मेन क्लब से कुछ लोग वो कहीं और मीटिंग कर सकते हैं, उनको सैटेलाइट क्लब करते हैं। उनकी मेंबरशिप, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी मेन क्लब में ही होंगे, पर वो करीब 8 या 8 से ज्यादा यदि वो उस क्लब की मीटिंग में नहीं आ सकते तो वो कहीं और मीटिंग कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को सैटेलाइट क्लब कहा गया। और कॉर्पोरेट क्लब की रचना की। कॉर्पोरेट क्लब ऐसे क्लब होते हैं कि जो बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, जिनकी हाउसिंग सोसाइटी होती है, या वहां पे उनके लिए ही आप एक क्लब कर सकते हैं। जैसे जो पुराने रोटेरियन में हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते थे, अब क्लासिफिकेशन की कोई बात ही नहीं है, तो कॉर्पोरेट क्लब कर सकते हैं। कॉज बेस्ड क्लब आप बना सकते हैं कि कोई म्यूजिक लवर है, कोई क्रिकेट लवर्स हैं, तो इस तरह कोई शतरंज खेलना पसंद करते हैं, कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो रीजन कोई हो उस तरह के क्लब आप खोल सकते हैं। एंड ई क्लब का अब कोई कंसेप्ट नहीं रहा है, ये इंट्रोड्यूस जरूर किया गया था, बट इसको अब हाइब्रिड क्लब कर दिया गया है कि आप अपने ही क्लब में कुछ लोगों को बाहर से भी जोड़ सकते हैं जो आपकी ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। रोटेक्टर एक बड़ा मूवमेंट है। मैं रोटेक्टर डीआरआर को एक्नॉलेज करना चाहूंगा, मोस्ट एक्टिव। इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी कॉन्फ्रेंस में डीआरआर को इतना एक्टिव नहीं देखा। मेरे ख्याल से एक ताली तो हो सकती है। ये जो रोटेक्टर 1920 में जब अपर एज लिमिट इनकी खत्म की, अब डुअल मेंबरशिप लेके आए कि रोटेक्टर रोटेट में भी रह सकते हैं और रोटेरियन भी बन सकते हैं, तो उससे वो पैरेलली दोनों संस्थाओं को ज्वाइन कर सकते हैं और रोटेक्टर अपने पेरेंट क्लब के साथ ग्लोबल ग्रांट के प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से रोटेक्टर को इन्वॉल्व किया। तो आपने देखा होगा कि हम अभी तक बोलते थे 12 लाख रोटेरियन, 12 लाख रोटेरियन, और मैं सेठ साहब के जमाने से 12 लाख रोटेरियन देख रहा हूँ। वो 12 लाख कांस्टेंट है, लेकिन अब सडनली हम 14 लाख बोलने लग गए हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेक्टर। एक प्रोजेक्ट जो स्केल ऑफ ग्रांट, ये प्रोजेक्ट नया कंसेप्ट आया है 2021 में। इसमें $2 मिलियन मिनिमम फाउंडेशन कंट्रीब्यूट करता है, मिनिमम, जिससे कि बड़े प्रोजेक्ट हो और सोसाइटी में एक बड़ा इंपैक्ट आए। जैसे जब हमने पोलियो शुरू किया था और एक पोलियो का इंपैक्ट आया, तो आज रोटरी एक इस बदौलत कह पाती है कि वर्ल्ड से हमने ऑलमोस्ट पोलियो को हटा दिया है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटरी। और उस प्रोजेक्ट जो मैं याद कर रहा हूँ, शायद 1985 में मनीला फिलीपाइंस में हुआ था, उसी तरह से $2 मिलियन का जो $US का प्रोजेक्ट है, मलेरिया फ्री जाम्बिया, 2021 में उसकी ग्रांट हुई। उसके बाद टुगेदर फॉर हेल्थ एंड फैमिली इन नाइजीरिया 21-22 में, एंड यूनाइटेड टू एंड सर्वाइकल कैंसर इन इजिप्ट 22-23 में। और यहाँ पे हमें गर्व की बात है कि लास्ट ईयर वाटर एक्सेस एंड बेटर हार्वेस्ट इन इंडिया, उसमें भी एक $2 मिलियन की एक ग्रांट सैंक्शन हुई है। तो इन ग्रांट को करने का मकसद यह है कि जब बेटर इंपैक्ट आएगा, और हम सब रोटेरियन ये तो जानते हैं कि हमारा पैसे से ज्यादा हम कैटलिस्ट का काम ज्यादा करते हैं। एक बार कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो तनखा जी जैसे व्यक्ति हमारे साथ हैं और भी कई लोग हैं, तो हम जब ये इनकी वॉइस जब गवर्नमेंट में जाती है तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ आती है और उसके बाद फंडिंग गवर्नमेंट करती है और हम सिर्फ एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। ट्रस्टी ने अब डिसाइड किया है कि 2025 तक उनका रिजर्व फंड $2 मिलियन का हो जाए।
और वो हम सबके सहयोग के बिना जब तक हम APF में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी 21-22 में इंट्रोड्यूस की गई, इंक्रीज योर इम्पैक्ट। आप अच्छे प्रोजेक्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करें, एक्सपांड योर रीच। आपको इस तरह से जाना है कि आप जिस रीजन में रोटरी नहीं है या रोटरी को जानते नहीं है, ऐसी जगह में आपको एक्टिविटी करना है जिससे कि वो लोग भी रोटरी को जाने और उनको भी कार्य करने का एक मौका मिले। एनहांस्ड पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, डिफरेंट सोसाइटी को, डिफरेंट एसोसिएशंस को आप अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें। रीजनल एडॉप्टेबिलिटी की बात हो ही गई है, मैं थोड़ा फास्ट करता हूं, शायद मेरा टाइम ओवरशूट हो गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोटरी अपने ब्रांड इमेज पे बहुत कंसर्न है। अब ये जो डॉक्टर साहब लकी है कि इसी साल थीम है, इसके बाद थीम नहीं है, वो मैसेज है। सो थीम अब ये लास्ट थीम है और उसका रीजन ये है, शायद रोटरी के महत्व ये रही होगी कि मल्टीपल चीजें प्रोजेक्ट करो तो स्टेशनरी पे बहुत सारी चीजें प्रिंट होती है। नाउ वी विल हैव टू प्रिंट रोटरी और स्पेसिफिक लोगो, स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक कलर। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह से उस लोगो को यूज कर ले। और इन सब चीजों को देखने के लिए इतनी हेल्पफुल साइट्स रोटरी की हैं, क्योंकि यहाँ पे सामान्य रोटेरियन भी हैं। यदि आप माय रोटरी पे जाएंगे, आपको आपका रोटरी का डेटा दिखेगा, आप क्या है, क्या कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल क्या है, आपने फाउंडेशन को कंट्रीब्यूशन क्या दिया है। रोटरी क्लब सेंट्रल एक ऐसा फीचर है कि आपके क्लब की एक्टिविटी वहां पे आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट की देख सकते हैं। रोटरी शोकेस में आप जो भी करते हैं वो आप अपलोड करेंगे तो पूरा वर्ल्ड उस प्रोजेक्ट को देखेगा। रोटरी ब्रांड सेंटर इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटर। आप कभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे रोटरी का लोगो कैसे प्रिंट करना है, फाउंडेशन का लोगो कैसे प्रिंट करना है, जस्ट जाइए ब्रांड सेंटर पे, वहां पे अपने क्लब के नाम से डिजाइन करिए, प्रिंट करिए, डिजाइनर को भेजिए और आपका काम रेडी है। इट्स सो सिंपल। आपको रोटरी के बारे में कोई भी ज्ञान लेना है, किसी भी लीडरशिप पे, किसी भी लेवल पे, जस्ट रोटरी का लर्निंग सेंटर फॉलो करिए। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी एक लिंक मिली थी कि आप ऐसे RIPR आप जा रहे हैं तो आपको इतने कोर्स कंप्लीट करना है। तो जब आप वो रोटरी की साइट पे जाके देखते हैं तो आपको बहुत नॉलेज मिलता है कि रोटरी आज कहाँ है और क्या कर रही है। ग्रांट सेंटर डेफिनेटली ग्रांट पे अप्लाई करते हैं। मैं 1 मिनट इस क्लब लोकेटर साइट पे देना चाहूंगा। इट्स वेरी सिंपल। आप अपने मोबाइल पे क्लब लोकेटर की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और 3070 के रोटेरियन का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कनाडा और USA में हो। जब आप वहां ट्रैवल करते हैं और आपको रोटरी क्लब ढूंढना है, जस्ट क्लब लोकेटर की साइट पे जाइए, पहले से ही ढूंढना है, उस एरिया का नाम डालिए या उसमें डालिए नियर 25 माइल 50 माइल्स, तो आपको क्लब के नाम, उसके प्रेसिडेंट का नाम, उसका ईमेल आईडी, सेक्रेटरी का मिल जाएगा एंड उसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मोबाइल नंबर भी मिलेगा। मोबाइल नंबर बाकी किसी का ना मिलेगा बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, बट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मिल जाएगा। तो आप मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ ईमेल करना है कि आई एम सच एंड सच और मैं कैलिगरी में आया हूं और मैं आपकी क्लब की मीटिंग को अटेंड करना चाहता हूं। तो जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और इंटरनेशनल टेस्ट है वो क्लब लोकेटर की ऐप से बहुत आसानी से हो सकता है और न वहां की कई बार हमें भी जरूरत पड़ती है तो हम उस क्लब लोकेटर की ऐप को यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर पीस सेंटर की जो बात कर रहा था, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, रोटरी ने टारगेट किया 10 रीजन में पीस सेंटर बनाना। अफ्रीका, युगांडा और वेस्ट फोर्टियन एरिया, टर्की, इस्तांबुल में ऑलरेडी है। अब उस समय हमें रोटरी का इतना फ्लेवर और ये नहीं पता था कि किसी से संपर्क करें या करें, तो हम एज यूजुअल एज ए टूरिस्ट हम उन्हें जम्मू लेके आए। जम्मू में हमने एक मेडिसिन शॉप पे गए और हम उस जमाने की जो भी पेन किलर होगी वो सोर्स करने की कोशिश कर रहे थे कि इन्हें पेन किलर दे दें और फिर हॉस्पिटल में कहीं लेके जाएं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी किस्मत के ऊपर और उस व्यक्ति के ऊपर शायद कहीं रोटरी का किसी के पास पेन होगी या बैग के ऊपर रोटरी का स्टिकर लगा होगा
उस व्यक्ति ने हमसे पूछा कि आप रोटेरियन हैं? हमने कहा हम सब रोटेरियन हैं। और वो मेडिकल शॉप जिसकी थी वो जम्मू में, दुष्यंत जी मुझे याद नहीं है वो कौन थे, उन्होंने कहा मैं आपका सारा काम करता हूँ। उन्होंने अपनी शॉप, उसी समय हमारे यहाँ मंगल बोलते हैं जिसको शटर, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी शॉप क्या चलेगी, कौन आएगा। हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाया, प्लास्टर करवाया, और उसके बाद हमारी जो मालवा एक्सप्रेस थी वो 15-20 मिनट की टाइम पे जाने वाली थी। हमको फटाफट पैकअप करवा के, खाना पैक करके और मालवा एक्सप्रेस में बिठा दिया कि आप लोग जाए। हम उस व्यक्ति का न नाम पूछ पाए, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल और ये भी नहीं था, हम पता भी नहीं कर पाए। बट दिस इज द रोटरी, वो हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि जम्मू थे, उनका शुक्रगुजार और धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। ऐसी कई रोटरी की स्टोरी है, वाई वी आर इन रोटरी, बहुत जब मौका मिलेगा ऑफलाइन हम आपसे डिस्कस करेंगे। जय रोटरी, जय हिंद। थैंक यू संजीव जी।